and today we are going to do a Q&A about my college. Since a lot of you were asking me so many questions in the comment section and I can't answer all of them there, so I thought of making this video. Let's get into it quickly. But let me tell you, my pre-profs are going on and I've taken out time for y'all to make this video, so at least I deserve a like and also to subscribe to my channel. Now, let's get into the video. Let's talk about hostel. Now I can't give you a hostel tour, but few pictures are already available on Google and you can also search on YouTube, but I can give you a brief. On the ground floor you have mess. On the first floor, it's a common area where I'm sitting right now. You'll get all sort of indoor games like table tennis, chess, carom, and from the second floor there are rooms. Second, third, fourth and fifth floor there are 4 floors. हॉस्टल की टाइमिंग्स की अगर बात करें तो 9 बजे तक you're allowed to sleep out. 9 बजे अटेंडेंस होती है and then you have to go into your rooms. ठीक है. Rooms are really nice here. Let me tell you, it's really better than other ASMCs or most of the GMCs because you have really nice furniture here. So the first question is, faculties are irregular and also labs are under-equipped. No, that's really not true. Labs are equipped now. Of course, when we came, we had few drawbacks here in our college because it was a new college, but now we have everything in labs and I think we've done almost all the practicals. We're not lagging behind. Now coming to faculties, no, they're not irregular. Everything is on. Faculties are not irregular. I don't know who gave you this information, but they're not. Our syllabus was completed on time. I think we did really good theory-wise only because of our faculties. Past patient load is very good of Gonda as compared to other new SMCs. I'm not sure because I haven't visited hospital yet. Of course I've visited, but I haven't been posted there, so I don't have much information about it. But let me tell you one thing, that majority of the people go to the nearby cities. If there's any problem with them, they'll prefer going to the other cities because Lucknow is very close to here and you have a lot of good hospitals there. So for minor things they come to the district hospital. That's what I think happens according to me. Now let's see. Even no, we haven't had any sport event in the last 1 year, but we were really busy in adjusting to this new life and we didn't know how to manage all of this. कॉलेज में कोई फेस्ट होता है कि अभी we were only 100 students and of course 100 students में फेस्ट का कोई पॉइंट नहीं बनता है, तो फेस्ट तो नहीं बट या छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, पूजा, सरस्वती पूजा एंड न्यू ईयर पार्टी और 2-4 चीज़ें हुई हैं, लेकिन फेस्ट एज सच तो नहीं हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट ईयर मे बी विल ट्राई. ना ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी अवेलेबल. ब्लिंकिट इज़ अवेलेबल. ब्लिंकिट तो अभी अभी आया है गोंडा में, आई थिंक जस्ट बिकॉज मेडिकल कॉलेज. ब्लिंकिट अवेलेबल है, स्विगी जोमेटो भी अवेलेबल है, डोंट वरी. स्विगी का इंस्टामार्ट में अवेलेबल है, बाकी या फूड इज़ अवेलेबल. नेक्स्ट इज़ बेसिक एमिनिटीज़ के लिए कितना दूर जाना पड़ता है. बिल्कुल दूर नहीं जाना पड़ता. बेसिक एमिनिटीज़ कॉलेज से ही स्टार्ट होती है. मतलब हमारा जो कॉलेज है उसके सामने सर्किट हाउस है और थोड़ा ही दूर पे चलोगे ना तो छोटी छोटी दुकानें आना स्टार्ट हो जाती हैं और बिल्कुल फिर आई थिंक 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है और उसमें फिर आपको पूरा मार्केट मिल जाएगा कि कॉलेज सिटी के अंदर है, तो सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है, बहुत पास. कुछ भी जाना हो यू कैन जस्ट गो बैक एंड कम बैक विद इन हाफ एन आवर, तो इट्स वेरी ईजी. नेक्स्ट इज़ व्हीकल अलाउड है. देखो फर्स्ट ईयर में तो नहीं अलाउड थे व्हीकल हमें एंड सेकेंड ईयर से मुझे पता नहीं, बट फर्स्ट ईयर तक तो नहीं अलाउड है. देन कॉलेज की फैकल्टी कैसे है, एकेडमिक कैसे है. एकेडमिक्स तो देखो बहुत अच्छा है क्योंकि पढ़ाई तो बहुत अच्छी करवाई है फैकल्टीज़ ने एंड आई रियली अप्रिशिएट देम. और इतनी ज़्यादा हम लोग परेशान रहते थे बट सब ने आई थिंक बहुत हेल्प की हमारी. एकेडमिक्स तो अच्छा ही है और फैकल्टीज़ तो भाई बहुत अच्छे हैं. नेक्स्ट इन बैडमिंटन कोर्ट तो ऐसे कोर्ट नहीं है बट हमने ऑडिटोरियम में ही ना कोर्ट ऐसे बनाया हुआ है ना, नेट लगा के एंड पोल्स लगा के, तो व्हेन देयर इज एन इवेंट तो हम वो हटा देते हैं, अदरवाइज़ वो कोर्ट परमानेंटली बैडमिंटन कोर्ट ही कह लो उसको. तो न्यू बिल्डिंग कितनी बन गई है और पीडी ट्रॉमा विंग की बिल्डिंग अलग है कि नहीं. देखो न्यू बिल्डिंग हॉस्पिटल की एक ही है और आई थिंक अलग तो नहीं होगी क्योंकि एक ही बिल्डिंग बनी है, सब उसी में है. देन कॉलेज के अराउंड एरिया कैसा है. कॉलेज के अराउंड एरिया अच्छा है, मतलब सुबह के टाइम पे मतलब एरिया सेफ़ है. रात के टाइम में थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है गर्ल्स के लिए क्योंकि वहाँ पे तो थोड़ा जंगल है आसपास. स्टार्टिंग में मतलब कॉलेज से लग के सिर्फ आई थिंक 500 मीटर्स थोड़ा जंगल ही मिलेगा तुम्हें, 500 मीटर्स 1 किलोमीटर, बट फिर उसके बाद पूरी मार्केट है, तो वो जो एरिया वो थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है. अदरवाइज इट्स ऑल गुड. ठीक है, रात के टाइम पे आई एम टेलिंग, मतलब व्हेन इट्स रियली डार्क, ठंडी का टाइम एंड ऑल. क्वेश्चन, फ्रीक्वेंट प्रैक्टिकल्स एंड लैब्स होते हैं. फॉल्स फ्रीक्वेंट प्रैक्टिकल्स होते हैं. एक वीक में हमारे 4 फिजियो के प्रैक्टिकल्स होते हैं, 2 बायो के होते हैं और अनैटमी का डीएच तो रोज़ ही होता है.
नेक्स्ट कमिंग बैक टू फैकल्टी के बारे में, फैकल्टी अच्छे हैं। नंबर ऑफ कैडवर्स, तो हमारे लिए तो अभी एक कैडवर आया था, बाकी अब वो यूज़ हो गया है, तो अब नेक्स्ट बैच में ही आएगा। हॉस्टल एक्सपीरियंस कैसा है? हॉस्टल एक्सपीरियंस देखो ठीक है, मतलब अच्छा है। आई थिंक जो थोड़ी बहुत चीज़ें हर हॉस्टल में कमियाँ होती हैं वो होती हैं कभी कभी, बट वैसे ओवरऑल एवरीथिंग इज़ रियली गुड हियर। मेरे हिसाब से मुझे तो ठीक लगा। हाँ, थोड़ा पानी का इशू है, मतलब गोंडा का पानी थोड़ा ठीक नहीं है, काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट है हेयर, स्किन और हर जगह पे। यहाँ पे बहुत सारे कीड़े हैं, जैसे खतरों के खिलाड़ी में होते हैं ना, सो यू गेट यूज टू मस्कीटो बाइट्स एंड इंसेक्ट बाइट्स। और लाइक रात में सोते टाइम ना कीड़े काट जाते हो, तुमको पता भी नहीं लगेगा, और नेक्स्ट डे तुम उठोगे ना तुम्हारे फेस पूरा रेडेड होगा, और वो पूरा ऐसे जलता है बहुत, और वो ठीक भी नहीं होता है 1-2 हफ्ते तक। मेरे नेक पे कीड़ा कर गया था, और मेरे स्टमक एरिया पे कर गया, बट वो ठीक नहीं हुआ अभी तक, उसको हो गया टाइम 1-2 हफ्ता। तो हाँ, यू विल गेट यूज टू इट। एंड नेक्स्ट है गेम्स एंड जिम है क्या? जिम तो नहीं है देखो, गेम्स, हाँ गेम्स हैं थोड़े बहुत हैं जितने हैं, बाकी देखते हैं फ्यूचर में और हम लोग अपील करेंगे और गेम्स। नेक्स्ट आपने पूछा था कि कौन से रैंक पे मिल रहा है कॉलेज, तो मुझे लास्ट ईयर EWS कैटेगरी में 26,600 के अराउंड थी मेरी रैंक, तो मुझे ये वाला कॉलेज मिल गया था। बाकी अब आप कैलकुलेट कर लो जनरल का और उसका मुझे नहीं पता, आई थिंक कैटेगरी का, बट SC/ST का, लेकिन जनरल का 1000 और कम कर लो, 25,000 तक मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे हॉस्टल लेना कंपलसरी? नहीं, कंपलसरी नहीं है हॉस्टल लेना, तुम बाहर भी रह सकते हो, ठीक है। फिर एक ने पूछा है कि इज़ देयर इंडियन टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल? ऑफ कोर्स। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेस फीस। मेस फीस इज़ 4200 पर मंथ। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर मिलता है, और संडे को स्नैक्स नहीं मिलता है, ठीक है, सही है, इट्स प्रीटी रीजनेबल। बाकी ये सब चीज़ थोड़ा कॉस्टली, बट इट्स बाकी आप लोग ड्रेस कोड के बारे में पूछ रहे थे, तो ऑफकोर्स ड्रेस कोड तो है, बॉयज़ के लिए ग्रे पैंट एंड वाइट शर्ट एंड गर्ल्स के लिए सलवार कुर्ता है। एंड नेक्स्ट ईयर्स, मतलब हम लोग जब आए थे तो हम लोग तो फ्रेशर्स नहीं मिला था, तो पूरे साल हम लोग ने ड्रेस पहनी थी, लेकिन जो नेक्स्ट बैच आएगा उसको हम लोग जब फ्रेशर्स दे देंगे, तो मे भी उसके बाद से ड्रेस नहीं पहननी होती, ऐसा मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर। सो या दैट्स वेरी मच इट फॉर टुडे, एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। और अगर और भी क्वेश्चन होना तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको कमेंट में रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगी। एंड आई होप यू guys enjoyed this video. If you enjoyed it, please like, subscribe and share to your friends who are going to be sitting in counseling. See you all in my next video. Bye. Wish you luck.